My dear friends, a simple question comes in our mind that why we perform the experiments in the laboratories or we do practicals. What's the need of that? Okay, you know very well, actually experiments are the foundation of the development of the science. And in this development, we start with observations by various instruments. Like if you want to measure certain length, then you can use a meter scale. If you want more better and accurate measurement, then you can use the vernier caliper. Still more precision and more accuracy, then you can use the traveling microscope for measuring some length, for a short length, measurement of a small length. Then using the instruments, we collect the informations and then we reach a certain set of conclusions. We formulate some laws and make some theoretical predictions on the basis of that. Okay? And from the derivations so observed, we can perform the new experiments, predict the new laws, and formulate the new theoretical aspect of the phenomena. This is behind that why we perform the experiments. In fact, the process goes on endlessly, bringing to light the truth about the whole universe. Okay, so experiment is therefore the foundation of the physics, right? And only a carefully conducted experiments, just notice, only a carefully conducted experiments leads to the discovery of the law governing some phenomena. Also, it leads to the verifications of a law already predicted by the physicist. Okay, like the Newton first law, second law, third law, Kepler's law, and the law of flotations, etc. And all this requires an experimental approval to establish the truth. For this purpose, the physicists have not only been trying to invent more and more perfect instruments of measurements, but have also developed methods to perform the experiments which eliminate, the possible errors in the various factors which lead to the particular phenomena or the law. तो बेसिकली देखो क्या होता है कि हम एक्सपेरिमेंट करते क्यों हैं? देखो हमें पता है आज कि जी की वैल्यू कितनी होती है 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर और 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, पर फिर भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं. लाइक सिंपल प्रॉब्लम का आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो काय के लिए, स्मॉल जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू फाइंड करने के लिए. तो आप कह सकते हो तो ऑलरेडी हमें पता ही है, नो डाउट पता है, पर आपका यहाँ से साइंस का स्टार्ट है कि आप भी कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट करो जो एक्सपेरिमेंट आपको जी की वैल्यू तक पहुँचाए. और साइंस कभी ये नहीं कहती कि किसी ने यदि कुछ करा है तो हम उसको ऐसे ही मान लेना है. नो, आपको उसको वेरीफाई करना है. यही तो फ़र्क है हमारे में और जो साइंस नहीं पढ़ते उनमें. जो साइंस नहीं पढ़ते वो हर एक चीज़ को बिलीव कर लेते हैं, वो मान लेते हैं कि ये ऐसे. साइंस का स्टूडेंट्स कभी जो बात पहले कही गई है
चाहे कितना भी बड़ा साइंटिस्ट क्यों ना हो, उसकी बात को, उसकी उसकी प्रेडिक्शंस को, उसकी थ्योरेटिकल फॉर्मेशन को फिर से प्रूव किया जाता है अगेन एंड अगेन एंड अगेन, और जितनी भी एक्यूरेसी तक पहुंचा जा सके पहुंचते हैं। देखो, एक्सपेरिमेंट कभी नहीं कहेगा कि आपने जो किया है वो 100% ट्रू है, क्योंकि कितने तरह के एरर्स भी इन्वॉल्व होंगे। तो एक्सपेरिमेंट के बाद एरर को समझना भी बहुत बड़ी बात है। तो मैं थोड़े से एरर की बात करूंगा, उसको आप ध्यान से सीखना। और जब भी आप एक्सपेरिमेंट करते हो, रिजल्ट्स एंड रिजल्ट लिखने से पहले आपको एरर के बारे में लिखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि यदि आप एरर को डिस्कस नहीं करोगे तो उसमें फिर तो बात होगी कि आपने उसको साइंटिफिकली प्रैक्टिकल परफॉर्म ही नहीं किया है। ओके, तो ये होता है कि हमारा एक डेवलपमेंट है कि हमने अपने माइंड को, अपनी मेमोरी को, इसको हमने डेवलप करना है साइंस के लिए, और हम स्टार्ट कर रहे हैं छोटे छोटे प्रैक्टिकल्स के साथ, और यही भावना है इसके पीछे। चलो अब हम एरर के बारे में जानेंगे। So firstly, I will discuss with you the percentage error. You know, in case of percentage error, in the numerator we take the calculated value and minus the exact value divided by exact value into 100. For example, in case of acceleration due to gravity, the exact value we know very well, it is 9.8 meter per second square, but the value which you obtain by the experiment, let it is 9.9 meter per second square because of some error. So that means the percentage error becomes, what is the calculated mean obtained from the experiment? It is 9.9 minus the, which is exact 9.8, divided by again the exact value 9.8, and answer comes 1.02%. So this is called in percentage error. You can calculate percentage error if you know what's the exact value of that physical quantity, okay, and what is your obtained value, right? Now we are coming the permissible errors. Permissible error in the measured value is equals to the least count error of an instrument. You know, for example, जो मीटर स्केल होता है ना हमारा, तो मीटर स्केल में 1 स्मॉल डिवीजन काय की इक्वल होती है 1 मिलीमीटर। इसका मतलब कि 1 मिलीमीटर से कम रीडिंग तो आप मेजर कर ही नहीं ना पाओगे। तो मीटर स्केल कितना एरर देगा, ज़्यादा से ज़्यादा कितना एरर दे सकता है, जितना उसका लीस्ट काउंट है, और लीस्ट काउंट मीटर स्केल क्या है 1 मिलीमीटर। परमिसिबल एरर को समझने के लिए ना हम एक एग्जांपल ले रहे हैं कि मेरे पास एक लेंथ है, ये रेड लाइन से दिखाई हुई है, इसको मैं मीटर स्केल से मेजर करना चाहूँगा, और यदि मैं पहले मान लेता हूँ कि मैंने लीस्ट काउंट एरर को कंसिडर नहीं करना है, तब लेंथ क्या होगी। तो ये मीटर स्केल है, तो स्टार्टिंग एंड की लेंथ है 4.6, और जो दूसरा एंड है उसकी वहाँ से लेंथ मेजर हो रही है मीटर स्केल से 12.2। यदि मैं एरर नहीं कंसीडर करूँगा तो मुझे फाइंड करनी है इसकी लेंथ, तो कितनी आएगी वो 12.2 माइनस 4.6, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा माइनस करके 7.6 सेंटीमीटर। पर आपको पता है ना कि मीटर स्केल का लीस्ट काउंट क्या होता है 1 मिलीमीटर। मतलब कहने का मतलब कि मीटर स्केल एरर आपको क्या दे सकता है, जितना उसका लीस्ट काउंट है। मतलब मीटर स्केल 1 मिलीमीटर का एरर इंट्रोड्यूस करता है, तो 1 मिलीमीटर का मतलब क्या हुआ 0.1 सेंटीमीटर।
यदि वो 0.1 सेंटीमीटर का एरर इंट्रोड्यूस कर रहा है, तो जिसे आप लेंथ कह रहे हो 4.6, तो 4.6 में 0.1 सेंटीमीटर का एरर होगा। तो मतलब इसको कैसे लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे 4.55 टू 4.65। मतलब यदि आप 4.65 को माइनस करोगे 4.55 से, तो कितना आएगा? 0.1 सेंटीमीटर। मतलब मैं कह सकता हूँ कि यदि मैं सोचूँ ना कि 4.6 को एरर से लिखना है, तो एरर की थ्योरी का है कि आपकी लेंथ जो है, ये प्रोबेबिलिटी है कि वो 4.55 से लेके 4.65 तक कहीं मर्जी कुछ भी हो सकती है इन बिटवीन। मतलब प्रोबेबिलिटी ये उसमें हम पक्का नहीं कहेंगे कि वो 4.6 है, मतलब इन बिटवीन कुछ भी हो सकती है वैल्यू, क्योंकि ये एरर यहाँ से लेके यहाँ तक एरर कितना हुआ? 0.1 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे कैसे? 4.6 प्लस माइनस 0.05, क्योंकि 0.05 से जब हम मतलब जैसे ये 4.6 है ना, ये 4.6, तो माइनस करेंगे 0.05 तो गैप यहाँ पे आएगा, प्लस करेंगे 4.05 तो यहाँ पे आएगी लाइन। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो जाएगा? 1 मिलीमीटर, है ना। 0.05 इधर और 0.05 उधर, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा? 0.1 का ना। तो 4.6 में एरर कितना है? 0.1 सेंटीमीटर का। तभी हम लिखते हैं 4.6 प्लस माइनस 0.05, क्योंकि 0.05 उसके लेफ्ट साइड पे, 0.05 उसके राइट साइड पे, तो डिफरेंस 0.1 सेंटीमीटर ही होएगा। तो ऐसे ही 12.2 को लिख लेते हैं, दोनों तरफ जाना पड़ेगा ना, लेफ्ट पे और राइट पे। तो 12.15 से लेके 12.25 तक, तो इसका भी डिफरेंस कितना आएगा? उतना ही, 0.1 सेंटीमीटर का। पर यहाँ पे प्लस माइनस 0.05 लिखेंगे। ठीक है, ये स्टार्टिंग वाली ये 2 रीडिंग्स हैं और लास्ट वाली ये 2 रीडिंग्स हैं। तो हमने देखना है कि अब यदि ये रीडिंग्स पास में है ना, तो यदि इनको माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? इनको माइनस करने से हमें मिलेगा 7.5। तो यदि हम जो एक्सट्रीम वाली वैल्यूज़ हैं उनको माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? तो हमें मिलेगा 7.7। देखो, हमें एरर मतलब ये वैल्यू थी, जैसे ये स्टार्ट वाली 2 वैल्यू थी, एंड वाली 2 वैल्यू थी, तो मिनिमम लेंथ जो हमें मिल रही है, मिनिमम, वो इन दोनों को माइनस करके मिल रही है 7.5, और मैक्सिमम लेंथ जो मिल रही है वो मिल रही है 7.7। तो मतलब क्या हुआ? मतलब हुआ कि 7.6 प्लस माइनस 0.1, प्लस माइनस 0.1 का मतलब कि आपके राइट साइड पे भी 0.1 और लेफ्ट साइड पे भी 0.1, और डिफरेंस कितना हो जाएगा? 0.2 का। तो यहाँ पे 0.2 का ही डिफरेंस है ना, ये 7.7 माइनस 7.5 मीन 0.2। तो ये 7.6 के प्लस माइनस का मतलब होता है लेफ्ट पे भी मूव करना है 0.1 को, राइट पे भी मूव करना है 0.1 को, तो 7.6 इन बिटवीन रहेगा। तो ये वैल्यू एग्जैक्ट होगी 7.6 प्लस माइनस 0.1। तो हम लर्न क्या कर रहे हैं? हम लर्न कर रहे हैं कि जितना परमिसिबल एरर होता है, जैसे 0.05 का था एक रीडिंग में, दूसरी में भी 0.05 का था, तो टोटल एरर क्या हुआ? ऐड हो गया, चाहे हमने रीडिंग्स को माइनस किया तब भी। तो एरर हमेशा ही ऐड होता है, चाहे क्वांटिटी को आप प्लस करो चाहे माइनस करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एरर ने हमेशा ही ऐड होना है। माइंड में रहेगा ना, कई बार हम सोचते हैं कि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं दोनों को, तो एरर तो ख़त्म ही हो जाएगा,
है ना, ये तो कटे जाएंगे, तो गलत सोचते हैं। ये कटते नहीं है एरर हमेशा ही एडिशन में जाते हैं। जैसे मैंने आपको इसको बड़ी डिटेल में ये ऐसे बताया कि कैसे होता है सिंपल ही है। ध्यान रखना होता है कि जितना भी लीस्ट काउंट होगा ना, उसका आधा करना होता है, क्योंकि वो दोनों तरफ मूव करता है, लेफ्ट पे भी और राइट पे भी। और जितना कोई लीस्ट काउंट होता है वही उसका एरर बनता है। तो हमें कौन सा इंस्ट्रूमेंट प्रेफर करना चाहिए? जिसका लीस्ट काउंट कम हो, और वही एक्यूरेट होगा। ठीक है, ओके। तो पर्सनल एरर क्या होता है कि ये किसी भी पर्सन के कारण, उसकी नेग्लिजेंसी हो सकती है, केयरलेसनेस हो सकती है। आप एक ही क्वांटिटी को मेयर कर रहे हो, सेम एक्सपेरिमेंट है, सेम इंस्ट्रूमेंट है, सेम ऑपरेटर्स है, सब कुछ सेम है, पर आप 2 बार रीडिंग लेते हो तो दोनों बार डिफरेंट आती है। क्यों? तो ये फिर पर्सनल एरर ही होगा ना। ये चांस के कारण हो सकता है, इट इज बिकॉज ऑफ द मैटर ऑफ चांस। अब इंस्ट्रूमेंटल और कांस्टेंट एरर क्या होता है? कई बार ना मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होता है इंस्ट्रूमेंट में, तो उसके कारण एक कांस्टेंट सा एरर हर एक रीडिंग में आएगा ही आएगा। यदि मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होगा तो यदि तो आपको पता नहीं चलता उस एरर का, है ना। मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है तो आपकी नॉलेज में नहीं है तो वो एक कांस्टेंट एरर हर एक रीडिंग में वो ऐड, हर एक रीडिंग उससे अफेक्टेड होगी। तो यदि हर एक रीडिंग अफेक्टेड है किसी कांस्टेंट एरर के साथ, तो वो एरर कौन सा होगा? इंस्ट्रूमेंटल एरर। और इस एरर को ना आप एलिमिनेट कर सकते हो कैसे? यदि मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है तो आप ना कोई एक्सपेरिमेंट जो कर रहे हो ना, उसका डिफरेंट मेथड से करो। डिफरेंट मेथड से आप डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स यूज करोगे। तो यदि एक इंस्ट्रूमेंट डिफेक्टिव है तो दूसरे में चांस कम ही होगा ना। सेकेंड इंस्ट्रूमेंट को यूज करो, या तो आप इंस्ट्रूमेंट बदल लो, चाहे आप मेथड्स बदल लो मेजरमेंट की, तो उससे ये एरर खत्म हो सकता है। खत्म तुम नहीं कह सकता मैं, मिनिमाइज कर सकते हो। तो एक होता है सिस्टमैटिक एरर। देखो, जो हम पहले कह रहे थे डिफेक्टिव है इंस्ट्रूमेंट्स, वो तो हमें पता ही नहीं होता ना। सिस्टमैटिक एरर का कॉज हमें पता होता है, मतलब या डिवाइस इम्परफेक्ट होती है, एरर हमें पता होता है, पर हम उस एरर को उसको इग्नोर कर देते हैं। सिस्टमैटिक एरर में क्या होगा कि उसमें नॉन कॉजेस के कारण एरर ऐड होगा, डिवाइस भी इम्परफेक्ट हो सकती है। कॉजेस यदि नॉन कॉजेस क्या हो सकते हैं? आपको पता है, जीरो एरर होता है उसमें, वर्नियर कैलिपर में, स्क्रू गॉज में, स्पायरोमीटर में। और जीरो एरर को हम ये नहीं कह सकते कि वो डिफेक्टिव है। इंस्ट्रूमेंट्स डिफेक्टिव नहीं है, जीरो एरर हो सकता है, पर उसका हमें पता है और थ्योरी पता है, उसका हमें उसको हटाने का तरीका पता है। तो वो एरर किस में आएगा? सिस्टमैटिक एरर में। मतलब यदि आपको कारण का पता है कि उसको हटाया जा सकता है ना, तो उसको हम कहेंगे सिस्टमैटिक एरर। कुछ एक्सटर्नल कॉजेस होते हैं, उनके कारण भी एरर आता है। जैसे आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और एक्सपेरिमेंट करते करते टेम्परेचर बदल गया, प्रेशर चेंज हो गया, ठीक है। तो ऐसे आपके एक्सपेरिमेंट करते हुए विंड फ्लो होना शुरू हो गई, तो ये सब कारण बन सकता है, एक्सटर्नल कॉजेस हैं, इनके कारण भी एरर इंट्रोड्यूस होगा। देखो, अब हम कुछ काम आपको दे रहे हैं, कुछ एरर के बारे में आपको बताना है, और प्लीज़ आप स्टडी करिए इसको नेट पे कहीं पे। इनके आंसर हमें चाहिए इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में। अपना नाम लिख देना, रोल नंबर लिख देना कमेंट्स बॉक्स में, साथ ही इनके आंसर लिखने हैं। तो यदि आप इसके आंसर लिख पाओगे तो दैट मीन गुड, नहीं लिखोगे तो क्या होगा फिर? बैड। ग्रॉस एरर बताना क्या होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होती है, और एक एरर और हम दे रहे हैं रैंडम एरर, कि रैंडम एरर क्या होता है। और एक बात ध्यान रखिएगा,
चाहे कोई भी एरर हो, किसी भी एरर को बिल्कुल ख़त्म करना पॉसिबल नहीं होता है। हाँ, मिनिमाइज कर सकते हो, कम कर सकते हो। तो आप कुछ हमें मेथड बता दो कि हम एरर को कम कैसे कर सकते हैं, मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं। ओके, तो मेरा फ़ोन नंबर है 9888 169 226। तो यदि कुछ आपको पूछ